That's good. And it's need of the hour actually. Oh yes, ये तो लगता very है essential. कि जाकर हेल्थ कम्युनिकेशन जी, we become a need of the hour. बिल्कुल बिल्कुल. नेग्लेक्टेड एरिया है ना ये, इसलिए दिस इज रियली रिक्वायर्ड. अभी मैंने भी एक वेबिनार किया था इसी तरह से सुभारती यूनिवर्सिटी के लिए ऑन जी, हेल्थ कम्युनिकेशन। अच्छा. तो उसमें तो करियर प्रोस्पेक्ट एंड वो मतलब स्टूडेंट्स के पर्पस से था। आई नो इट हैज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. मेरा जो मेजर फोकस रहता है वो क्लिनिकल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग पर रहता है. Like how do you conduct patient interview, what is the right way of handling your patient, and then once you have done the assessment, how do you inform the patient about what is the possible diagnosis, or what are we planning to take further action in terms of investigations or some procedure or some admission. So I cover all those aspects of communication between the doctor and the patient. Health communication and public health is also very important. So we teach them BCC, Delegate Chain Communication, and IEC also some Yeah, important. yeah. So That majorly complete, on the promotion of health and awareness, and yeah, yeah. I agree. I agree. तो किसी दिन आपसे वैसे ही पर्सनली मुलाकात करेंगे और बहुत सारी जरूर मैम, जरूर 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 जरूर. I'm sure such webinars are going to open a lot of new opportunities, avenues for all of us. So it's always good to connect with people who are working on the same platform. So there's a lot to learn from each other. Hello, Vani, how are you? Vani, am I audible to you? I can see Mr. Gerg's this thing video. I can see. Namaskar, sir. जब तक सेशन शुरू होता है एटलीस्ट हमारा आपस में इंट्रोडक्शन हो जाए तो वी विल गेट टू नो ईच अदर. दैट विल बी नाइस. डॉक्टर गोविल, नमस्कार सर. नमस्कार मैम. नमस्कार सर. So nice. Google are sir, I think has it to be a self introduction? That will be better perhaps. आप दे सकते हैं, देना चाहे थोड़ा सा. मैम मुझे कुछ ऐसा नहीं है बताने के लिए, ये इतना ही काफी है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेंटल हेल्थ के फील्ड में एक्सटेंसिवली काम कर रही हूँ, एंड आई एम इनटू लॉट ऑफ ट्रेनिंग. और चेतना के साथ मैं पिछले 8-10 साल से जुड़ी हुई हूँ. चेतना एक एनजीओ है जिनके साथ हम लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करते हैं. एंड मिलकर हमें ये आइडिया आया कि व्हाई नॉट कंडक्ट सच प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव ऑलवेज try to help students in understanding what is the right way of leading life. We have done multiple programs in Delhi University. Chetna has done multiple programs in Delhi University. तकरीबन हमने 25 कॉलेजेस में स्टूडेंट एम्पावरमेंट के ऊपर सेशंस लिए, जिसमें बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, कम्युनिकेशन, हाउ डू यू रियली मेक योर लाइफ बेटर, उसके ऊपर सारा हमने जो है कवर करा. That's nice. I'm Suresh Garg, and I retired as principal of Deendayal Upadhyaya College. जी. Where I was for 20 years as principal. जी. And for last almost a year now, I'm with Maharaja Agastya Institute of Management Studies as Director General, as has already been told. जी. And we have also been organizing lots of programs for women empowerment. Okay. Women scientists in India. There was a series of lectures from women scientists. Then we had programs on women empowerment from a group from UGC. And we have had lots of people from medical background also who delivered standalone lectures. Yeah, yeah. So, and this has become a very important component. Yeah, there is also a private company called Zygo, who were associated with us in Deendayal Upadhyaya College for organizing sessions for student counseling. Okay. Okay. Yeah. So, सर बहुत जरूरत है मेंटल हेल्थ की फील्ड में, बहुत काम की जरूरत है. दिस इज वन एरिया विच इज नेवर अटेंडेड टू, और उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं. जो ये इवन इंस्टाग्राम पे जो वायरल हो रहा है, जो उन बच्चों का केस आ रहा है जहाँ पे उन्होंने ऐसा, इट्स ऑल बिकॉज वी आर नॉट able to address the contemporary issues where we need to really empower our kids with the that discretion ki what is right and what is not right, and how do you really choose between the two, because every time we can't be with our children.
So we have to empower them with the right understanding that even if there is nobody to supervise me, I should be able to choose what is appropriate and right. And that has to be the focus of education, whether it is school or college. I think we have to really change our stand of teaching subjects, because subjects will not give them sensibility. They may give them degree, they may give them professional qualification, but it will not make them sensible. And I think that is one front we are completely failing in terms of our education. In fact, what I'll say is that education is incomplete without it. Sir, it is failing. I mean, I don't think any school or any college is addressing this aspect of child's development. Parents are helpless. They do not know how to handle it. I think as a school, as a college, we can develop curriculum around it where we automatically instill these skills among kids. And what is the right way of expressing yourself? How do you manage your anger? How do you identify your emotions? How do you express yourself? What is the right way of behaving in a social setup? Even in the absence of any supervision, how am I supposed to be behaving responsibly? These are the skills that we really need to teach to our kids. All these subjects, I don't remember what I studied in class 10th, how much I'm able to use it now. Dr. Arneja, don't you think the teachers need to be empowered first? Because every time a professional counselor can't be called to the class and change this. Definitely not, sir. Having a counselor is become a part of life. Yes. These teachings have to become a part of life. That's what I'm saying. Every teacher, irrespective of what subject he or she is teaching, should imbibe these values in the normal course of teaching. That's true. That's true. That's what I'm saying. And plus, counselor can handle cases which are not manageable by the teachers. Exactly. Specific but ultimately, cases. Every teacher has to be empowered with the idea. How do you handle your class? How do you, give them right values? And for that, I don't think you require to go out of the course. Even while teaching your subject, you can, teach these virtues, because they can be inbuilt with the. Absolutely. In fact, they need to be inbuilt. They were inbuilt. After all, we also studied as students. Now we have become subject oriented and percentage oriented and position oriented. So our focus is completely shifted. So sorry, sir and ma'am. It's already 3. Should we start and admit everybody? So how many people do we have right now? Ma'am, I'm admitting everybody. Yeah. People are waiting. Our participants are waiting. Please allow them. So I think we can wait for another 2-3 minutes. Or in case if you want to start with the introduction part, maybe you can do, so that in 5 minutes time we should have our session going. Ji, ma'am. And by then I think we'll have all the participants also. Sure, ma'am. We have 68 participants right now. Yeah. 68 are already in. I think 3 are waiting. So Vani, are you admitting them? Yes, ma'am. I'm admitting everybody. Yeah. So we'll begin. Namaste and good evening to everyone. My name is Vani Manuraj, and on behalf of Chetna, I will be moderating today's session, which is being organized by Chetna Conscious of Women in association with Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. Today's session, we would be joined by Dr. Indu Arneja, who should be talking about mental health. And after her presentation, we would be having an interactive session where जहाँ पे इंदु जी आपके दिए हुए सवालों के जवाब देंगी. तो मैं जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक लाइव पे और जूम पे, मैं उनसे कहूंगी कि वो अपने अपने सवाल जो चैट है जूम पे वहां पे दें, और जो फेसबुक लाइव है वहां पे जो कमेंट सेक्शन है उस पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं. एक चीज मैं विनंती करूंगी सभी पार्टिसिपेंट से जूम पे कि आप जब प्रेजेंटेशन हो रही हो तो आप सभी अपने माइक्स को म्यूट पे रखें. I would now like to invite Director General of MAIMS, Dr. S.K. Garg, to say a few words. Thank you, Vani. Friends, for the last month and a half, we all have been under tremendous stress because of the uncertainties in this COVID era. We were not clear how long it is going to last. At every time, we were looking for the next fortnight. Fortunately, we decided to cover our courses online, and we succeeded in it. And the assignments part has also been done. I believe the internal assessment part is complete. The university has given a revised schedule
from today onwards, for next 1 month, the university has declared summer vacations, and immediately after the summer vacation, they plan to hold the examination in paper and pen, if circumstances become favorable. Now, everybody has this stress. We do not know whether things will work out to conduct the examination on paper and pen or not, because the alternative has also been suggested by the university that in case it doesn't open, the circumstances do not warrant, then we may go in for online examination for the third year students, and for rest of them, we may have a promotion policy based on internal assessment and previous semester's examination. All these things are causing stress to everyone. And of course, there are stress due to personal reasons also. There may be curtailment of salaries, curtailment of funds. We are stressed out because we do not have an opportunity to go out, interact, socialize. Nothing is there, nothing is possible during this period. So to de-stress you and to apprise you how to manage this stress, we have requested Chetna, the Conscious of Women, which is an NGO. And Chetna has invited Dr. Indu Arneja, who is a psychologist, a professional psychologist and counselor, to deliver today's talk. My sincere thanks to Chetna, my sincere thanks to her president, Dr. Jyoti Mazumdar, and my thanks are due to Dr. Indu Arneja. You are welcome to deliver the talk. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir. I would now like to invite Mrs. Jyoti Majumdar, who's the president of Chetna, to say a few words about the work that Chetna has been doing. Mrs. Jyoti ma'am, are you online? Jyoti ma'am, you need to unmute yourself. Yeah, sure. Do we have? आपको डिवाइस से अनम्यूट करना पड़ेगा, और मे बी वी कैन डू हर. मैंने कर दिया आई थिंक. हाँ, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है मैम, आ रही है, बिल्कुल आ रही है. हाँ, हेलो, नमस्कार. आज बुद्धि पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती इस शुभ अवसर पर, और ये शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ. आज मैं चेतना के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कराना चाहती हूँ. चेतना एक विजन के साथ और एक मिशन के साथ कार्य करती है. चेतना का विजन है ये हार्मोनियस, सेल्फ रिलायंट एंड हैप्पी सोसाइटी, ये विजन है. और चेतना का मिशन है टू एम्पावर एंड एनेबल women to become positive changes agent in the society. इस विजन और मिशन के साथ चेतना अपना कार्य करती है. चेतना Conscience of Women has been working for uplifting and empowering women and children since 2011, making them a strong pillar for national reconstruction. Hello. Please, hello. हम लोग सुन रहे हैं मैडम. हाँ, आवाज आ रही? आ रही है. हाँ. चेतना मुख्यतः अपने 5 वर्टिकल्स, 5 पंचसूत्री कार्यक्रम है जो चेतना के 5 वर्टिकल है. वो फर्स्ट है हेल्थ, सेकंड एजुकेशन, सेफ्टी, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट. इन 5 वर्टिकल्स में 5 क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करके चेतना अपना कार्य करती है. और जो यूएन निर्धारित 5 अपने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके साथ जोड़कर चेतना का अपना ये कार्य आगे बढ़ रहा है. मैं वर्टिकल वाइज आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताती हूँ. जो हमने हेल्थ के क्षेत्र में जो काम किया है
जिसमें हमने ये 4 प्रोजेक्ट्स चलाए, बेझिझक बातें, स्वास्थ्य, मेडिकल हेल्थ कैंप्स और फैमिली प्लानिंग। तो इसमें मैं बेझिझक बातें जो हमारा एक यूनिक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। ये बेझिझक बातें जो हमारा प्रोग्राम है, ये एक्चुअली ग्रोइंग गर्ल्स के बारे में है, उनके लिए है स्पेशली, जो मेंस्ट्रुएशन में जब आती है तो उनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां रहती है, उसके बारे में डर रहता है, कुछ आशंकाएं रहती है, और वो कुछ परिस्थितिवश या संकोचवश अपने घर में खुलकर बातें नहीं कर पाती। तो उसके लिए हमने ये एक प्रेजेंटेशन इसका बनाया है और ये स्कूलों में इसके प्रेजेंटेशन किया है, तो इसमें काफी अच्छा रिस्पांस आया है। उसमें हम प्रयास करते हैं कि उनके मन का ये जो डर है वो कम हो जाए, और इसमें पर्सनल हाइजीन किस तरह से हम इसको मेंटेन करें, इस बारे में सिखाया जाता है। स्वास्थ्य पर ज्यादातर हम हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ को प्रमोट करते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। बाकी मेडिकल कैंप्स हमारे लगते हैं, फैमिली प्लानिंग पर भी हमने काम किया है। दूसरा हमारा जो है मेन है एजुकेशन में हमने ये 5 विषयों पर फोकस किया है। उसमें फर्स्ट है एक उड़ान, मस्ती की पाठशाला, सूर्य चेतना, उज्जवल भविष्य और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एक उड़ान में हमारा जो विशेष है कि ये अनप्रिविलेज बच्चों के लिए जो ट्यूशन के लिए नहीं जाते हैं, हमने उनके लिए ट्यूशन क्लासेस करते हैं। दूसरा ये मस्ती की पाठशाला, ये हम समर वेकेशंस में करते हैं, ज्यादातर 20 दिन 25 दिन जितना जहां संभव हो सके, और वो बच्चों के साथ पढ़ाई के अलावा अदर करिकुलम, अदर एक्टिविटीज को कैसे उनको प्रमोट किया जाएगा, इस पर हमारा फोकस रहता है। तो इसमें स्पीकिंग होता है, स्पोर्ट्स होता है, और फन के साथ हम खेल कूद के साथ उनको कुछ संस्कार करते हैं, सिखाते हैं। कोई नृत्य करता है, कोई डांस करता है, और इसमें हमें इनका इंटर्न्स का इस समय हमें ज्यादा मिल जाते हैं इंटर्न्स, क्योंकि कॉलेजेस में भी वैकेशंस होते हैं। तो इंटर्न्स के सहयोग से और इंटर्न्स के साथ बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। और बाकी हम लोग वो हर प्रोजेक्ट को विजिट करते हैं, और इसका समापन जब होता है, एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें हर सेंटर के बच्चे अपना अपना परफॉर्म भी करते हैं जो उन्होंने सीखा है। तो ये खबर कार्यक्रम ये वेकेशन में चलता है, समर वेकेशन। दूसरा एक हमारा मेन है सूर्य चेतना। ये एक्चुअल कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे बच्चों में इतना अच्छा हुनर होता है, लेकिन कुछ परिस्थितिवश या कुछ अभाव के कारण वो अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो सूर्य चेतना नाम से एक हमने उनको ये मंच दिया है। उसमें वो वहाँ आते हैं, गीत सीखते हैं, कुछ डांस सीखते हैं, कुछ तबला सीखते हैं, हारमोनियम सीखते हैं। तो इस तरह से हमने उनको डेवलप किया है। उज्जवल भविष्य में करियर गाइडेंस करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सारा करते हैं। तीसरा वर्टिकल हमारा सुरक्षा का, सेफ्टी का। तो इसमें जो सेल्फ आत्म सुरक्षा के बारे में ज्यादातर हमें सिखाया जाता है लड़कियों को, और इसमें भी हमने दिल्ली पुलिस के साथ यहाँ पे दिल्ली के स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। फिर एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का आता है। तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं या को एजुकेशन में होते हैं, उनका जो लड़कियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण होता है, आजकल तो नेट पर आप सब देखते हैं कि कितना सब कुछ ओपन है, लेकिन ये उनका दृष्टिकोण हम सकारात्मक करें लड़कियों के प्रति जो अपनी को एजुकेशन में पढ़ने वाले हैं, और ये घर में भी सिखाया जाना चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है। तो हमने इसमें भी स्कूल में और अन्य जगह पर भी जेंडर सेंसिटाइजेशन सिखाने का हमने प्रयास इसमें किया जाता है। तो इसमें हमारे बेनिफिशियरीज 6000 एडल्ट्स एंड गर्ल्स है और 2000 इसमें बॉयज स्टूडेंट्स है। चौथा हमारा है अवेयरनेस प्रोग्राम का। अवेयरनेस में वही सेफ्टी और सेल्फ डिफेंस है, विमेन एम्पावरमेंट, जनरल इक्वालिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, और इसमें एक लीगल अवेयरनेस। तो ये महिलाओं के लिए जो हम ज्यादातर इसमें हम करते हैं
कि महिलाओं के लिए जो कायदे कानून या कुछ नियम होते हैं तो उस बारे में लीगली हम उनको अवेयर करते, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि अपने लिए क्या है और उसका हम कैसा उपयोग करना चाहिए। तो मेन फोकस इसमें हमारा लीगल अवेयरनेस पर भी रहता है, जेंडर इक्वालिटी। और में विमेन एम्पावरमेंट जो स्किल डेवलपमेंट, इसमें है कि महिलाओं को हम आर्थिक दृष्टि से कैसे सक्षम कर सकते हैं। योग्यता नाम से हमारा एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलता है, जिसमें टेलरिंग, नीटिंग, कैंडल मेकिंग ये तो सिखाया जाता है। फिर उनसे कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं, जैसे रनर है, कुशन कवर है, ब्लैंकेट्स है, स्लिंग बैग्स है। फिर इन प्रोजेक्ट को मार्केट कैसे हो, क्योंकि उनको उसका पैसा भी मिलना चाहिए। जब तक महिला के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो उसको आत्मविश्वास भी नहीं आता है, सक्षम नहीं लगता वो अपने आप को समझ। तो हम इन प्रोडक्ट्स को, जैसे दिवाली मेला है या अन्य जगह जहाँ हैंडीक्राफ्ट्स के एग्जीबिशंस लगते हैं या कुछ कॉलेजेस में, तो हम उसको एग्जिबिट करते हैं और उसमें अच्छा सेल होता है। तो महिला को जब अपने हाथ में थोड़ा सा पैसा मिलता है तो अपनी खुश होती है और अपनी मर्जी से उसको वो अपना परिवार के लिए, अपने लिए खर्च करना चाहती है। उसको परिवार के किसी सदस्य पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। ये हमारा उसमें मेन फोकस है। इसके अलावा हमारा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है, जो हमने एनसीवेब के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी तक 10 कॉलेजेस में 18 सेशंस लिए हैं। उसमें करीब करीब 2000 प्लस स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिला है और आज भी इसकी बहुत डिमांड है। इसका हमने पूरा करिकुलम बनाया है, इसमें एक्सपर्टीज को भी बुलाते हैं और उनकी कॉलेज की सुविधा अनुसार हम उन कॉलेजेस में इस प्रोग्राम को आयोजित करते रहते हैं। इसके अलावा भी हम थोड़ा गवर्नमेंट के साथ भी कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। कुछ योजनाएं ऐसी है कि उन महिलाओं तक पहुंचे, उसमें भी अवेयरनेस किया जाता है। जैसे हमने एनसीडब्ल्यू के साथ एक बड़ा सा सेमिनार किया था 2 दिन का। फिर एक फैमिली प्लानिंग पर भी एक प्रोग्राम किया था मैं और खासकर उसमें महिला और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पर एक स्टडी की थी। जो जैसे कॉलेज के कुछ वेकेशन में स्टूडेंट्स आते हैं, उनको शायद एक्सपीरियंस लगता है कि किसी एनजीओ के साथ काम करके 1-1.5 महीना। तो ऐसे हमारे पास 3 लड़कियां आई थी, स्टूडेंट्स आई थी और उन्होंने न्यूट्रिशन पर एक बहुत अच्छा काम किया था चेतना के साथ मिलकर एक बस्ती में। और उनको वो प्रोजेक्ट, अपना पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी में सबमिट करना था। तो उसमें उनको अवार्ड मिला। 25,000 का पेपर उनका सिलेक्ट हुआ और मजे की बात है कि वो 25,000 उन्होंने चेतना को ही डोनेट किया था। वैसा ही एक हमारा अदर है कि हमने भारतीय स्त्री शक्ति के साथ वृंदावन विडोज के ऊपर एक सर्वे और स्टडी किया था। उस पर भी अपने स्टडी रिपोर्ट हमने बनाई है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के प्रोग्राम चेतना द्वारा चलाए जाते हैं। वैसे अभी तक जो चेतना के हमने जो प्रोग्राम्स किए, चेतना के मंच पर कई मान्यवरों को हमने बुलाया था। उसमें प्रमुख रूप से निर्मला सीतारमण जी, जो आज भारत की वित्त मंत्री है, लेट श्रीमती आदरणीय सुषमा स्वराज जी और एक्स चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन्स। इन लोगों ने भी हमारे चेतना के मंच पर आके हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्य को सराहा है और आज भी उनके मार्गदर्शन हमें जो मिला था उसके अनुसार हमारा कार्य आगे बढ़ रहा है। हमारी 2 एक्स चेयरपर्सन है चेतना की, एडवोकेट ज्योतिका कालरा जी और डॉक्टर इंदु अर्णेजा जी। ज्योतिका कालरा जी आज वर्तमान में ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर है और इंदु जी तो आज हमारे साथ है, डायरेक्टर IICH है। इन दोनों के मार्गदर्शन में और इनके नेतृत्व में चेतना के कार्य का विस्तार हुआ है। ये हमारी वेल विशर है और आज भी जब भी चेतना को इनकी आवश्यकता होती है हमारे कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वैसे ही प्रज्ञा परांडे जी है, जो चेतना की फाउंडर है और आज NCPCR की सदस्य है। वो उसमें बहुत व्यस्त रहती है, उसके बावजूद चेतना के लिए उनका भरपूर सहयोग
मार्गदर्शन मिलता है। इसके अलावा हमारे कुछ को पार्टनर्स है, कुछ संस्थाएं है, वो भी हमें समय समय पर हेल्प करते हैं। एक तो सर्वम है, यूथ फॉर सेवा है, विजन इंडिया फाउंडेशन है, नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड है। ऐसे अन्य प्रकार की जो संस्थाएं जो चेतना के साथ जुड़ी है और समय समय पर हमें उनका सहयोग मिलता रहता है। यदि आप में से कोई और विस्तृत जानकारी चाहते हैं और हमें जुड़ना चाहते हैं, हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी जो साइट पर जो हमारी वेबसाइट है या जो ईमेल है, जो कांटेक्ट नंबर है, आप इसके बारे में हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैंने Thank you so much, ma'am. Please do follow Chetna's Facebook page and Instagram account. I would now like to introduce the speaker